Hello everyone. In this lesson of today's class, we are going to solve the exercise 11.3. Only last 3 questions are remaining, and remaining questions I have already explained in the last video. So let's start from the question number 13 without wasting the time. The given 13th question is, by joining the midpoint of 3 sides of a triangle, 4 triangles so formed are similar to the original triangle. What is the given? The given statement is, in a triangle, let's suppose ABC is any triangle in which when we will join the midpoint all these sides of this triangle, then 4 triangle will be formed from here, first, second, third and 4. These 4 triangles are similar to the original triangle. Clear? Means ये अपन P मान लेते हैं, P, Q and R. First of all, given that in triangle ABC, P, Q and R, the midpoints of sides AB, BC and AC respectively. This thing is given in the question. What is the given? In a triangle ABC, P, Q and R, the midpoint of the sides AB, BC and AC respectively. After joining these points, we will get 4 triangles, and what we have to prove? We have to prove these all 4 triangles are similar to the original triangle. So how will we do? Let's start to prove. Triangle APR is similar to triangle APR, तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा BQP is similar to CRQ and similar to triangle QRP, similar to triangle QRP. These 4 triangles are similar to the original triangle which is ABC. ये हमें इसके लिए प्रूव करना है. अब चलते हैं प्रूफ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इन चारों को म्यूचुअली या फिर किसी एक, पहले तो ये एक काम करते, देखो इन 4 ट्रायंगल्स में किसी एक ट्रायंगल को पूरे के साथ सिमिलर प्रूव करते हैं. ठीक है. एंड देन मान लो कि मैंने APR को सिमिलर प्रूव कर दिया ABC के, फिर बाद में APR को मैं इसके साथ और इसके साथ सिमिलर प्रूव कर दूं, तो फिर ये चारों म्यूचुअली हो जाएंगे और ये इसके साथ है, तो ये 5 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर. ये स्टेटमेंट अपना प्रूव हो जाएगा. तो मैं पहले प्रूव कर रहा हूँ ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ABC. फ्रॉम ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ABC. देखो यहाँ से P is midpoint of AB and R is the midpoint of AC. P, R are midpoints of AB and AC respectively. Clear? P and R are the midpoints of AB and AC respectively. Then using midpoint theorem, we can say that PR will be parallel to BC and PR is half of BC. क्लियर है बात यहाँ तक? क्या स्टेटमेंट दिया मैंने? मिडपॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट ये था, if we will join the midpoint of 2 sides of a triangle, then obtained line segment will be the parallel to the third side and half of it. मतलब मिडपॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो PR मिला, तो PR BC के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा. क्लियर है बात यहाँ तक? तो PR इज हाफ ऑफ BC. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं. अब देखो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस वन, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A. एंगल A इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, विच इज कॉमन. angle APR is equals to angle ABC because corresponding angle.
एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल APR is similar to triangle ABC. One thing we have proved. क्लियर है बात यहाँ तक? अब मैं किसी एक ट्राइंगल को, अब इसको इसके साथ प्रूव कर देता हूँ, ठीक? तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये अब अपन यहां से ये बोल सकते हैं क्या? देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये RQ भी इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, तो PQ इज पैरेलल टू AC हियर। PR अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ये दोनों पैरेलल है। अब अपन ये मेंशन कर लेते हैं, एंड दीज आर पैरेलल। आप समझ गए होंगे, तो मैं कर रहा हूं QR इज पैरेलल टू AB, QR इज पैरेलल टू AB, या BA बोल दो, AB बोल दो, कोई मैटर नहीं करता। एंड देन PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC in quadrilateral APQR. APQR opposite sides are parallel, therefore APQR is a पैरेललोग्राम। देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो अब ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम हो गया तो इस ट्राइंगल में बात करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल QPR, फ्रॉम ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल QPR। APR यहाँ से, QPR यहाँ से, ये एंगल देखो इसके इक्वल होगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बात यहाँ तक? कि ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली, और ये इनके ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल QRP रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन, एंगल ARP इज इक्वल्स टू एंगल QPR the same region alternate interior angle criteria अपन बोल सकते हैं triangle APR is similar to triangle APR is similar to QRP, triangle QRP similarly एक प्रूव कर दिया अपन ने इन दोनों में से, तो ऐसे ये हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों होंगे। सिमिलरली ट्राइंगल CRQ सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके पैरेलल करूँ तो CRQ के पैरेलल होगा, देखो C इसके इक्वल होगा R में PQR ट्राइंगल, या फिर Q पहले, ट्राइंगल Q पहले लेना चाहूँगा मैं, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ट्राइंगल QRP इज सिमिलर टू, Q किसके इक्वल होगा? R के। R किसके इक्वल होगा? Q के, और C ये बनेगा। वापस ले रहा हूं, एंड ट्राइंगल QRP, अब ये भी दोनों सिमिलर है QRP, तो Q किसके इक्वल होगा इस ट्राइंगल में? P पे, PQB, ट्राइंगल PQB, इससे इससे और इससे और इससे। देखो APR इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, ट्राइंगल APR, सो ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP is similar to QRP is similar to triangle RQC is similar to triangle QRP is similar to triangle PBC also, triangle PBC, and ARP is similar to triangle ABC. So these 5 triangles are similar to each other, and this is the our required result that one we have to prove. I hope so you understood. So please pause the video and note it down.
Now the next question, I am starting question number 14. A structure is given. Structure is like this: A, B, C, D and E. This is the angle of 90 degree and this is the angle of 90 degree. It is given that according to the figure, AB perpendicular to BC, AB perpendicular on BC and DE perpendicular on AC. Then prove that triangle CED is similar to triangle ABC. Triangle CED is similar to triangle ABC. DC parallel to, one more thing is given, DC is also perpendicular to BC. ये मैंने पहले अनाउंस नहीं किया था. अब देखो यहां से, here AB perpendicular on BC, DC perpendicular on BC, DE is perpendicular on AC. तो ये भी 90 होगा तो ये भी 90 डेफिनेटली. क्लियर है बात यहाँ तक. अब देखो ये एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी. क्योंकि अलाइड एंगल का सम यदि 180 डिग्री होता है तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगे. क्लियर है बात यहाँ तक. थोड़ा रेपिडली चल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो थोड़ा सा अपन स्पीडली कवर करने की कोशिश करेंगे. अब देखो यहाँ से फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CED, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ABC. एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल CED इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इट इज गिवन. और ये एंगल देखो इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल ECD, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल क्राइटेरिया, बोथ द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, ए एंगल किसके इक्वल है, C पे, B किसके इक्वल है, E के, और लास्ट में बचा क्या, D. और ये अपना प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का. अब नाउ आई एम स्टार्टिंग द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज D is midpoint of side BC. Structure is given like this. ABC is any triangle in which D is midpoint of side BC. It means these both parts are equal. Clear? D is the midpoint of side BC of triangle ABC. A line is drawn through B and bisect AD at point E. AD है. B से कोई लाइन ऐसे पास की जा रही है जो AD को बाइसेक्ट करती है, मतलब AD के मिड पॉइंट पे, और ये किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे, एंड इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट X. इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट X. Then prove that EX upon BE is equals to 1/3. हमें ये प्रूव करना है. टू प्रूव, या पहले लिखते हैं, given that in triangle ABC D is midpoint of D and E are midpoints of, D is midpoint of BC and E is the midpoint of AD respectively. Clear? ये हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखा है. अब हमें प्रूव क्या करना है, EX upon BE is equals to 1/3. Let me check again. Yes, EX upon BE is equals to 1/3. उसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूं मैं.
क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाए। कंस्ट्रक्शन डी से डी वाई, ड्रो ए लाइन डी वाई which is parallel to बी अक्स, मीन्स ये दोनों पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, टू बी अक्स इंटरसेक्ट ए सी एट वाई। ये इसके लिए कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। अब प्रूफ की बात करें, देखो एक तो मैं ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूं, ट्रायंगल ए ई एक्स, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई एक्स एंड ट्रायंगल ए डी वाई, ठीक है। तो क्लियरली बोल दे कि अपन यहां से ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये कॉमन हो गया दोनों में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए ई एक्स इज इक्वल टू एंगल ए डी वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ई एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी वाई। क्लियर है ना, ए ई एक्स इज सिमिलर टू ए डी वाई। अब देखो हमें इसका और इसका रिलेशन पता है, ए ई अपॉन देन ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन डी वाई। बात समझ में आई यहां तक? क्या मेंशन किया अपन ने, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर है बात यहां तक? और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं क्या? हाँ बोल सकते हैं, लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है यहां तक? सॉरी ये नहीं होगा, गलत कर दिया मैंने। ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन डी वाई, ई एक्स अपॉन डी वाई। और ए डी क्या हो गया, ए डी का मतलब हुआ ये डबल होगी ए ई की, ए ई अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई, बिकॉज ए डी इज अ कंप्लीट लेंथ, ए ई इसका हाफ है तो ये डबल हो जाएगी, इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन डी वाई। ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई एक्स। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें ये ट्रायंगल, क्योंकि डी वाई और बी एक्स इस ट्रायंगल में है, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल सी डी वाई एंड ट्रायंगल सी बी एक्स। क्लियर है? ये एंगल देखो इसके इक्वल, एंगल सी डी वाई इज इक्वल टू एंगल सी बी एक्स, and angle y is equals to angle c is equals to angle c, because these are corresponding angle and this is common in both the triangles. Again angle criteria, triangle CDY is similar to triangle CBX. We can say that CD upon CB is equals to dy अपॉन बी एक्स, अपन यहाँ से भी समझ सकते हैं सी डी अपॉन सी बी, डी वाई अपॉन बी एक्स। क्लियर है? अब देखो बी सी जो है वो सी डी का डबल होगी, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ सी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन बी एक्स। ये से कैंसिल, रिजल्ट आया 2dy is equals to bx. This is the equation number second. ex और dy की वैल्यू यहाँ से या फिर dy की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एंड dy is equals to half of bx. क्लियर है? ये दिखाई नहीं दे रहा है तो एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा bx is equals to 2dy, then dy is equals to bx upon 2. This is the equation number second. शो तो हो रहा है। ये वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ dy की, या फिर चलो रहने दो, ये रहने दो, इसी को इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। यहाँ पे dy की वैल्यू 2ex, तो bx is equals to 2 into 2ex,
2EX आई क्या? हाँ ठीक है, 2EX। BX को स्प्लिट कर रहा हूँ, BE प्लस EX, BE प्लस EX इज इक्वल्स टू 4EX। EX को इधर ले आओ तो 3 बचेगा, 3EX इज इक्वल्स टू BE। BE मैंने ये ले लिया और यहाँ से 3EX, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, इसको ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा EX अपॉन BE इज इक्वल्स टू 1 यहाँ बचा और 3 ये डिनोमिनेटर में आया, और ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। शो तो हो रहा होगा, नहीं हो रहा क्या? तो ये बस इसको सिंप्लीफाई करना हो जाएगा, या फिर ये यहाँ तो वापस करता हूँ, BE इज इक्वल्स टू, देखो BX इज इक्वल्स टू 2dy, 2dy की वैल्यू 2EX है, तो 2 इंटू 2EX तो 4EX हो गया। इसको स्प्लिट करें तो BE प्लस EX इज इक्वल्स टू 4EX। EX को इधर ले आओ, कितना बचेगा? 3EX इज इक्वल्स टू BE इधर बचा। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में, देन EX अपॉन BE इज इक्वल्स टू 1 और ये 3 इधर आ गया, और जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर था। आई होप सो यू अंडरस्टूड। So please pause the video and note it down. Finally we have completed our exercise.